Hello dear students, I am back again with a new topic and the new topic name is, guess what is the topic? Yes, vitamins. So in this presentation we will discuss and will get and more knowledge about vitamin, okay, and we will learn the names of all the vitamins and scientific names with this short trick also, okay. So are you ready with me? Yes. So before discussing and before starting this presentation, I want to share some feelings also, and I will use both types of the languages, okay. I will use Hindi language and I will use English language. So students choose their language according to their choice, okay. So let's start our presentation, but before starting the presentation I want to say something, okay. जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूनिक पहल की है आप लोगों ने, और आप लोगों के सहयोग से ये सब कुछ हो पा रहा है। YouTube चैनल पे हमने चैनल बनाया, इसका कोई मतलब नहीं था, कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आपके लिए ये सब कुछ क्रिएट किया, ठीक है। अब इसमें बात यह है कि विद इन ओनली वन डे वी हैव achieved more than 100 subscribers also. So give a big hand clapping for this achievement, okay. And अब बात यहाँ पे क्या है कि जब कभी कोई भी हमारी वीडियो बनती है, ठीक है, तो उस पर सभी स्टूडेंट्स एक तो प्रेजेंट हो और उस पर लाइक दें और कमेंट्स दें, ओके। सो अब इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें अपना नाम जरूर लिखें, आप जो भी कमेंट लिखते हैं उस पर नाम अपना लिखें, फादर नेम लिखें और क्लास लिखें, और फिर उसके बाद में जो भी क्वेश्चन पूछे गए आपसे उनके आंसर्स लिखें, ओके। दिस इज द प्रोसीजर एंड सब्सक्राइब अवर जुपिटर स्कूल चैनल मोर एंड मोर, ओके। व्हाई एम आई सेइंग दिस थिंग, क्यों कह रहा हूं मैं इसको, उसको सुनना ध्यान से। विद इन ओनली वन डे वी हैव अचीव मोर देन 100 सब्सक्राइबर, बट इफ वी अचीव more than 1000 subscriber, it means now our aim is to get 1000 subscriber. Why? Because if we have 1000 subscriber on our channel, then we will be live. Yes, हम आपके सामने बिल्कुल लाइव आएंगे फिर, okay, and total interaction will be live. Yes, so to get 1000 subscriber, do subscribe our channel more and more, okay. So this is my some feelings, and these feelings I want to share with you, okay. So let's start our new topic, name is vitamins, okay. And in this vitamin we will discuss some contents of the vitamins, in which the first content on which we will discuss the discovery of vitamin, okay. What is the meaning of vitamin and who was the founder of vitamin, okay. In the second content of the vitamin, types of vitamins, okay, and then we will discuss on the scientific names of the vitamins, and the fourth is the sources of vitamins. It means from which sources we can easily get vitamins, okay. And the next content is diseases named due to vitamins, okay. So in this slide we will discuss the many diseases which will be occurred due to the losses of vitamins, okay. And the last one will be quiz on the vitamins questions. So yes, I will give some questions to all of you, okay, and then give the answer of that question in the comment box and then get your prizes. Yes. So let's start our presentation. In the first presentation we will discuss about the father of vitamins and what are the meaning of vitamins. So now let's concentrate on my words. Vitamins is not a source of energy. It means they do not produce any energy and calorie for our body. Again I am revising. Vitamins do not release any energy and not give any energy and calorie for our body, but it protects our body from the diseases, okay. So you can easily read out the definition of vitamins. Vitamins are substances that your body needs to grow and develop
Normally they do not provide any energy and calorie for our body, but protect our body from the diseases. This is the definition. And now the next is the father of vitamin. Very important question, and I think all the students should know about the answer of this question. Father of vitamin अर्थात सभी बच्चों को, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, अगर किसी को दिक्कत होती है तो आराम से, कुछ गार्जियंस की ये प्रॉब्लम और कुछ स्टूडेंट्स जो कि बोलते नहीं हैं और अपने अंदर ही अंदर उस चीज़ को छुपा लेते हैं कि भैया वो आप फ्लुएंट बोलते हैं तो थोड़ा समझ में नहीं आता है, वो ट्राई तो करते हैं लेकिन फिर भी. बट माई एडवाइस ऑलवेज you should speak and understand English language, okay, because this English language will be beneficial in your future time also, okay. So father of vitamin is known as Kashmiri funk. Yes, speak with me, Kashmiri funk, okay. So father of vitamin name is, speak with me, Kashmiri funk, okay. Let's move on the second slide, in which we will discuss about the types of vitamins, in which there are total 13 vitamins. There are total 13 vitamins. Total 13 vitamins है, and these 13 vitamins will be classified into two types, okay. Will be classified into two types, fat soluble and water soluble, okay. So these total 13 vitamins will be classified according to fat soluble and water soluble, okay. It means which vitamin will be fat soluble and which vitamin will be water soluble, okay. So now the question is, you are observing that fat soluble will consist these four types of vitamins, vitamin A, D, E, K, okay, and water soluble vitamins will be V and C. And let's concentrate on my words. V vitamin also has a series, and B vitamins total 8 types, okay. 8 types will be present in vitamin V, okay. So B vitamin has its own series, okay, total 8 types, okay. We will discuss the scientific names and the names of vitamins one by one slide. We will discuss all the concepts, okay. So now the biggest question is, how can we store the scientific names and vitamins names, and which vitamin will be will be fat soluble and which vitamin will be water soluble, with a short trick, ठीक है. तो ज़्यादा इसको नहीं समझते हुए अपन एक शॉर्ट ट्रिक से समझे इस चीज़ को. मैं ट्रिक यहाँ पे लिख रहा हूँ. सबके पानी में मोटा कीड़ा. Yes, with the help of this, I know it's a very funny trick, okay. So I hope you will be enjoy these tricks, and these tricks are forming because with the help of these tricks you can easily learn the complex things, okay. So with the help of this trick, सबके पानी में मोटा कीड़ा. सो अब यहाँ पे आप ध्यान समझिए, सब सी निकला और के सब सी बी सब के पानी में, पानी मतलब वाटर. तो वाटर विल कंसिस्ट दीज टू टाइप्स ऑफ विटामिन सी एंड बी, ओके. आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है, कि वाटर में कौन कौन से होंगे, बी एंड सी, ओके. नाउ लेट्स मूव अहेड. मोटा मतलब होता है फैट, एंड फैट में क्या है, कीड़ा. और कीड़ा को आप कैसे लिखेंगे अल्फाबेटिकल में, KEDA. So fat soluble vitamins will be vitamin K, vitamin E, vitamin D and vitamin K. और इसको साफ पढ़ेंगे तो अपन क्या बोलेगा, कीड़ा. तो आराम से लर्न कर सकते हैं. यस,
आप आराम से यू कैन easily learn the names and which vitamin will be fat soluble and which vitamin will be water soluble. So let's speak with me. सबके पानी में मोटा कीड़ा, ठीक है। तो सी बी, सबके से निकला क्या, सी और बी, पानी मतलब वाटर, वाटर में है सी बी, और मोटा मतलब फैट, और फैट में कौन सा है, कीड़ा, के ई डी है। ओके, यू कैन राइट ऑल्सो। अब इसके बाद में अब यहाँ पे आगे अपन देखते हैं, तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कि फैट सोल्यूबल कौन से होंगे, के ई डी ए, एंड वाटर सोल्यूबल विल बी वी एंड सी, एंड वी ऑल्सो हैज a series, and in this series total vitamins will be 8 types. Okay, so we will discuss the names of these vitamin series in the next slide. Okay, in the next slide we will discuss about the scientific names of vitamins. Okay, now in the slide we will discuss about these vitamins scientific names. Okay, the first vitamin is vitamin A. Vitamin A scientific name is retinol. Speak with me, retinol. Vitamin A scientific name is retinol. Vitamin B scientific name is thymine. Vitamin C scientific name is ascorbic acid. Vitamin D scientific name is calciferol, and vitamin E scientific name is tocopherol, and vitamin K scientific name is phloquinone. Okay, pronunciation will be phloquinone. Okay, so these are the scientific names of the vitamins. Vitamin A scientific name is retinol. Vitamin B scientific name is thymine. Vitamin C scientific name is ascorbic acid, and vitamin D scientific name is calciferol. Vitamin E is tocopherol, and vitamin K is phloquinone. Okay. Now let's concentrate on the now. अब इस स्लाइड में, ठीक है, हिंदी बोल रहा हूँ। Now in this slide we will discuss, इस स्लाइड के अंदर हम अब डिस्कस करेंगे विटामिन बी की सीरीज को। विटामिन बी की सीरीज अभी हमने डिस्कस किया था कि विटामिन बी के अंदर कितने टाइप्स के विटामिन हैं, 8 टाइप्स के। कितने टाइप्स के हैं, 8 टाइप्स के। ओके, सो इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल डिस्कस दीज ऑल 8 टाइप्स ऑफ विटामिन बी। ओके, the first vitamin is vitamin B1. The scientific name is thymine. Vitamin B2 name is riboflavin. Vitamin B3 scientific name is niacin. Okay, vitamin next is vitamin B5. The scientific name is pantothenic. Next vitamin B6. Vitamin B6 scientific name is pyridoxine. And next is vitamin B7. Scientific name is biotin. Vitamin B9 scientific name is folic acid. And now last one is vitamin B12, very most important, B12, vitamin B12, and the scientific name is cobalamin, which is also known cyanocobalamin also. Okay, cyanocobalamin also. Let's concentrate on my words and sentences and some another important things also. Okay, and in the last we will discuss some questions also. Clear? We will discuss on the quiz also. So now the question is, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है यहाँ पे अब कि इन सभी जो साइंटिफिक नेम्स हैं इनको लर्न कैसे किया जाए। Clear? Now the biggest question is how can we store these all the scientific names of vitamin B series. Okay, so let's concentrate now. Hold your breath. Okay, because the next slide is going to how can we store the scientific name of the vitamin B series with a short trick. Okay, with a उत्कर्ष कटारा short trick. Okay, ये short trick बनाई गई, कल इसको बनाया था मैंने, तो देखते हैं कितने बच्चों को पसंद आता है। एक नई वो है, देखते हैं। देखो, तो अभी हमने देखे कि टोटल कितने टाइप्स थे, तो इसमें 8 टाइप्स थे। 8 टाइप्स किसमें है, विटामिन बी सीरीज में। तो पहली देखते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये कुछ, और इसको पढ़ते हैं। देखो अब क्या लिखा हुआ है, ये आप देख भी रहे होंगे, मेरी राइटिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ,
तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इसलिए आपसे इस चीज़ की गुजारिश करते हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। ओके, तो यहाँ बोलते हैं, देखो इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। ताई मैंने बोली, ताई मैंने बोली, नींबू फ्लेवर इन करके, नींबू फ्लेवर इन करके, नियाज पंत तनिक, नियाज पंत, वो क्रिकेटर नहीं है आपका ऋषभ पंत, ऐसे ही नियाज पंत तनिक पड़ोसन को दिया। यस, फिर से बोले, ताई मैंने बोली, ताई मैंने बोली, नींबू फ्लेवर इन करके नियाज पंत तनिक पड़ोसन को दिया। नेक्स्ट इज बाओदिन, बोदिन को अपन क्या बोल रहे हैं कि बाओदिन, एक फील से आना चाहिए, फील। ओके, वाओदिन भोला एक, बाओदिन भोला एक तोकू मेला में लेके गया। यस, सो दिस इज द राइम। ट्रिक क्या होती है, एक राइम बननी चाहिए जिसको बोलने में बड़ा इंटरेस्ट है। अब आप एक बार इसको फ्लो में बोलें, ताई मैंने बोली, ताई मैंने बोली, नींबू फ्लेवर इन करके नियाज पंत तनिक पड़ोसन को दिया, बाओदिन भोला एक तोकू मेला में लेके गया। यस, सो दिस with the help of this sentence we can easily learn the scientific names of the series vitamin B. Okay, so let's concentrate. How can we store? Thiamine, 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 thiamine. Yes. अब बोले इसमें एक अपन राइम बनाने के लिए है, नींबू फ्लेवरिन, नींबू फ्लेवरिन, राइबोफ्लेविन, नींबू फ्लेवर, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोल रहा हूँ, आपको फील आएगा अंदर से अपने आप। ठीक है, नींबू फ्लेवरिन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, आगे देखते हैं नियास, नियास को अलग रखा, नियास पंत है तो इसमें उसका जो सन नेम है उसको रख दिया, जो ओरिजिनल नेम है उसको रख दिया। ठीक है, तो नियास से निकला नियासीन। ये लो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और काफी मेहनत के साथ बनाया है, रात को ही बनाया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना अच्छा पसंद आता है। नियास पंत तनिक, नियास पंत तनिक, पंत तनिक से क्या बना, पैंथोथेनिक। अब देखो आप बोले एक साथ मेरा, पंत तनिक, पंथोथेनिक, पैंथोथेनिक, पैंथ तनिक, पंत तनिक, पैंथोथेनिक, पंत तनिक, पैंथोथेनिक। यस, आराम से बोल सकता है। यस, पंत तनिक, पैंथोथेनिक। एंड पैडोशन, पैडोशन मतलब पैडोशन को दिया। अब बोलो मेरे साथ, पैडोशन, पैडोशन, पैरिडॉक्शन, पैडोशन, पैरिडॉक्शन। यस, आराम से एक राइम बन रही है और बड़े ही इंटरेस्ट के साथ में अपने को मजे मजे में अपन आराम से इन साइंटिफिक नेम्स को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बाओदिन, 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 बायोटिन, बायोटिन, बाओदिन, बायोटिन, बायोटिन, बायोदिन। ओके, यस, बाओदिन मतलब बायोटिन। ओके, भोला एक, अब बोलो इसको, देखो भोला है, आराम में बोलो, भोला एक, भोला एक, फॉलिक, फॉलिक, भोला एक, एक फॉलिक, भोला एक फॉलिक। यस, आराम से लर्न हो गया। देखो, भोला एक फॉलिक एसिड। एंड तोकू मेला में, तो को मेला में, तो कोबालामिन। Yes, so this is the trick, and with this help of this trick we can easily learn the scientific names of B series. Okay, so एक बार फिर से बोल लेते हैं और आराम से इसको लर्न करना। और कितने बच्चों को पसंद आई अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि भैया हमें ये बहुत अच्छा लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरीके से आपके लिए और भी नई नई चीज़ें, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। यस, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके लिए वीडियो इसी जुनून के साथ में आपके अपू भैया आपके उत्कर्ष कटारा बनाता रहे। इसी चीज़ के लिए आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इतने सारे कमेंट करें, इतना सपोर्ट करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आपके भैया उसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। तो देखो यहाँ पे एक बार फिर से बोले हैं और सब मेरे साथ साथ बोलना, घर पे बोलना। ठीक है, कि आज भैया ने हमको ये सिखाया। देखो, ताई मन्ने बोली, ताई मन्ने बोली, नींबू फ्लेवर इन करके नियास पंत तनिक
पड़ोसिन को दिया, बाओ दिन भोला एक तो को मेला में लेके गया। सो इसकी हेल्प से आराम से आप इन सभी साइंटिफिक नेम्स को लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट डाउन भी कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड इज डिजीज ड्यू टू विटामिन्स। ओके, नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस डिजीज ड्यू टू विटामिन्स। इन द first is due to the loss of vitamin A, the disease occur name is night blindness. Okay, and next vitamin B, the disease name is beriberi. Vitamin C, vitamin D, disease name is scurvy. And next is vitamin D. Vitamin D disease is rickets, very important. Okay, विटामिन ई डिजीज नेम इज इनफर्टिलिटी, जिसको बोलते हैं नपुंसकता। ओके, हिंदी में बोलते हैं नपुंसकता। ठीक है, इट मीन्स नो जनरेशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन के की डिजीज का नाम है ब्लीडिंग या hemorrhage. Okay, so these are the names of disease which will be occurred due to the loss of these vitamins. Okay, विटामिन ए की कमी से होने वाला नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से होने वाला बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से होने वाला स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स है, और विटामिन ई की कमी से होने वाला इनफर्टिलिटी है, विटामिन के की वजह से है ब्लीडिंग। ओके, सो ए की मैं देखता हूँ, देखो ए की इसमें अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है। अब बात करते हैं अपन वन बाय वन। नाउ वी विल डिस्कस द मोर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ऑल द टाइप्स ऑफ विटामिन्स वन बाय वन। So in this presentation, in this slide, we will discuss only vitamin A. So vitamin A के साइंटिफिक नेम के बारे में हम शायद पहले ही जानते हैं। बताओ सभी क्या नाम होता है? रेटिनॉल। एंड डिजीज ड्यू टू द लॉस ऑफ विटामिन ए, रिसेंटली अभी डिस्कस किया है, क्या नाम था बताओ? नाइट ब्लाइंडनेस। नाउ द क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? तो सुनना मेरी बात ध्यान से। इनएबिलिटी टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट इन डिम लाइट। मैं ध्यान सुनना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, हिंदी में बोल रहा हूँ इस वजह से मैं आराम से, जिससे आराम से समझ में आ सके बच्चों के। इनएबिलिटी टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट इन डिम लाइट, मतलब एक डिम लाइट के अंदर एक परफेक्ट उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाना, ये इस टाइप की बीमारी जो होती है उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाउ द सोर्सेज, ये with the help of this picture we can easily understand what is the meaning of night blindness also. Okay, sources of vitamin A, these are the sources: curd liver oil, sweet potato, carrot is the most important. The sources by which we can easily get vitamin A. Okay, गाजर के थ्रू, and black eyed peas, spinach and broccoli, these are the sources of vitamin A. विटामिन बी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो हम विटामिन बी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या था बताओ, जल्दी बताओ? थायमीन था। ठीक है, विटामिन B1 का जो नाम था वो क्या था? थायमीन था। ओके, अब यहीं पे अगर मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, बताओ जल्दी से विटामिन B2 का क्या नाम था? जल्दी से बताओ, अपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें और देखते हैं आज सबसे पहले आंसर कौन देता है। और इस आंसर देने वाले बच्चे का नाम मैं अनाउंस करूंगा। सबसे पहले जो आंसर देता है उसके लिए प्राइज भी अनाउंस की जाएगी। यस, मेरी तरफ से बिल्कुल। डिजीज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन बी इज बेरीबेरी। और नेक्स्ट इज द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, these are the sources. You can read also: whole grains, meat, eggs and dairy products, seeds and nuts, dark leaves, vegetables, fruits also. Clear? So with these help of these sources we can easily get vitamin B also. सो विटामिन बी के सिम्टम्स क्या है वो देखते हैं। ठीक है, सो विटामिन बी के सिम्टम्स हैं कि मसल्स फंक्शन जो हैं वो डिक्रीज होने लग जाती हैं, और लोअर जो लेग्स हैं उनमें कहीं ना कहीं एक लो वीकनेस फील होती है। सो लॉस ऑफ फीलिंग इन द फीट एंड हैंड्स, पेन, मेंटल कंफ्यूजन एंड डिसेबिलिटी एंड मेंटल कंफ्यूजन एंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, ऑल्सो वॉमिटिंग and involuntary eye movements. Involuntary मतलब अनियंत्रित. Okay, and last one is paralysis. So you can easily understand these all the symptoms with the help of this picture also. Yes, with this help of this picture. Okay, in this picture we can easily get what is the sign of the symptoms of the beriberi. It means vitamin B.
अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम था क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। डिजीज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन सी इज स्कर्वी। सोर्सेज ऑफ विटामिन सी विल बी सिट्रस फ्रूट। अब आपको पता है, देखो यहाँ पे ऑरेंज के अंदर जो है सिट्रस फ्रूट्स, किवी, लेमन, गुआवा, वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम्स आर द रिसोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में बात करते हैं, विटामिन सी के सिम्टम्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो विटामिन सी के सिम्टम्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो अपन का पहला जो आएगा ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मतलब मसूड़ों से खून का निकलना, ये एक मेन साइन है किसका? विटामिन सी का। तो यहाँ पे आप आराम से समझ भी सकते हैं, कुछ स्पॉट भी दिखाई देने लगते हैं, रेड स्पॉट्स इज ऑन द स्किन्स एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड विद दिस हेल्प ऑफ दिस पिक्चर आल्सो। ओके, फ्रॉम द गम्स ब्लीडिंग इज कमिंग आउट, सो दिस इज द सिम्टम ऑफ sign of a less amount of vitamin C. So vitamin C can be get with the help of papaya, orange also. Okay, so let's discuss about vitamin D. The scientific name is calciferol. Calciferol. तो कैल्सीफेरॉल देखते हैं, डिजीज ड्यू टू द विटामिन डी इज रिकेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। ओके, रिकेट्स डिजीज इज अकर ड्यू टू द लॉस ऑफ विटामिन डी, और विटामिन डी इज ऑब्टेन्ड, नाउ लिसन ऑन माय वर्ड्स, विटामिन डी इज मेनली ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ दीज सोर्सेज, spend time in sunlight, this is the most important, sunlight, and due to this it is also known as sunshine vitamin, it is also known as sunshine vitamin. Okay, so this is the main object, main source by which we can easily get vitamin D. Consume fatty fish, seafoods, eat more mushrooms and include eggs yolks in your diet also. So these are sources. विटामिन डी के सिम्टम्स क्या हैं? तो यहाँ पे सिम्टम्स की बात करते हैं, तो विटामिन डी के सिम्टम्स में आ जाएगा, मेन सिम्टम्स विल बी फैटिक। एक बात ध्यान रखना, ये फैटिस नहीं है, फैटिक है, फैटिक इज राइट प्रोनाउंसिएशन, फैटिक एंड टायर्डनेस फील्स इन द टायर्ड कैन हैव मेनी कॉजेस, बोन एंड बैक पेन एंड द मेन सिम्टम्स विल डिप्रेशंस, बेंडिंग इन नीज. Yes, this is the main symptoms by which we can easily understand which type of disease occur in the body. Okay, bending in knees. So with the help of this picture also, we can easily understand this is the normal legs. Okay, and this is the legs due to the lack of vitamin D. It means disease rickets. Rickets disease happen in these legs and legs are bending. यहाँ पे आप देख रहे हैं legs बिल्कुल सीधे हैं और यहाँ पे आपको bend दिखाई दे रहे हैं, तो this is the sign of a rickets. Okay, एक और बात यहाँ ध्यान सुनना, विटामिन डी को अपन क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन बोलते हैं, और एक और बोलते हैं इसको विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज हार्मोन विटामिन. यस, हार्मोन विटामिन इज ऑल्सो नोन एज. ओके, एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे हमने डिस्कस किया था विटामिन ए को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस विटामिन ए को और क्या बोलते हैं? निक्टेलोपिया. क्या बोलते हैं? निक्टेलोपिया. निक्टेलोपिया इज आल्सो नोन एज विटामिन ए. ठीक है, तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन बोलते हैं, और यहाँ पे एक टर्म भी होती है टू द लेस अमाउंट ऑफ. देखो विटामिन डी इज ऑब्टेन मेनली ऑब्टेन फ्रॉम विच मिनरल? इसका भी आंसर दें मेरे को, जल्दी से कमेंट में आंसर दें इसके बाद में, फिर इसके बाद में बताऊंगा इसका क्या आंसर होगा. विटामिन डी इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम विच मिनरल विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बोन्स, जो कि हड्डियों में एक ताकत को प्रदान करता है, हिंदी में बोलते हैं. ठीक है, हिंदी थोड़ा सा मेरा वो है, तो इसलिए ध्यान से अपन समझते जाएं. विटामिन ई के बारे में डिस्कस करते हैं. साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल. Disease due to the vitamin E is infertility, and the sources of vitamin E: nuts such as almonds, peanuts, vegetable oil such as sunflowers, wheat grams. Okay, विटामिन ई के सिम्टम्स की बात करते हैं. सिम्टम्स ऑफ विटामिन ई के बारे में बात करते हैं. मसल डैमेज दैट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ फीलिंग इन द आर्म्स एंड लेग्स, लॉसेस ऑफ बॉडी मूवमेंट कंट्रोल एंड मसल्स वीकनेस. इट मींस टोटल द मेन सिम्टम्स ऑफ द ई विल बी मसल्स वीकनेस एंड वीकनेस इम्यून सिस्टम also. So with the help of this diagram we can easily understand symptoms of vitamin E also: deficiency, stomach problem, hair loss, difficulty in walking, muscles and decreased sex drive also, and vision loss. These are the symptoms of vitamin E. विटामिन के बारे में डिस्कस करते हैं. विटामिन के का साइंटिफिक नेम था, तो क्या था?
फिलोक्विनोन, जिसका डिजीज इज अकर्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन के, हेमरेज बोल सकते हैं अपन इसको, या ब्लीडिंग। सोर्सेज ऑफ विटामिन के में आपको मिलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, फिश लिवर, मीट, एग्स एंड सीरियल्स। एंड दीज आर सिम्टम्स में क्या होगा, जैसे अभी बात अपन देखिए कि यहाँ पे जो मेन जो डिजीज है उसका मतलब क्या है, ब्लीडिंग निकलना। ब्लीडिंग मतलब सिंपल से जैसा आपको पता होगा कि नक से निकल जाए, अपन वर्ड सुना है, नाक से खून का निकलना, ठीक है, और ब्रेन हेमरेज वगैरह जो ब्लीडिंग है, ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के का मतलब क्या है, देखो के से निकला है कोगुलेशंस, ओके, कोगुलेशन तो नाम सुना ही होगा ना अपन ने, ठीक है, शायद सब आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन आ रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। के का सिंपल समझना है अपन, के का मतलब था कोगुलेशन, और कोगुलेशन का मतलब क्या होता है बताओ, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का जमना, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ द विटामिन के, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विल बी प्रेजेंट इन द बॉडी, ओके। सो if there is no stoppage of blood, then it means we have a low amount of vitamin K. Easy bruising, oozing from nose or gums, heavy menstrual periods, and bleeding from the gastrointestinal tracts, and blood in the urine and or the stool, okay. So these are the symptoms of vitamin K. It means the main symptoms will be the no clotting of the blood, clotting of blood का मतलब क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म ऑफ द ब्लड विल कन्वर्ट इनटू जेल फॉर्म, ओके, समझना ध्यान से। हम जब अपन कट हो जाता है अपन का ब्लड कभी, तो कुछ टाइम के लिए बाहर निकलता है, उसके ऊपर पर एक लेयर से आ जाती है, जेल लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है, इसको बोलते हैं अपन क्लॉटिंग, जिसको कोगुलेशन बोलते हैं। तो कोगुलेशन ये के इसलिए वहीं से आया है, ठीक है। So ये this is the total presentation about the vitamins. So I think and I hope you enjoy our presentation, and now I am asking some question, okay, to all of you, and then give answer of this question, okay. So the first question is, which vitamin is known as sunshine vitamin? Then give me answer in the comment box. I am giving some options also, and these are the options: vitamin C, vitamin A, vitamin B, and vitamin D, okay. You don't know the answer of this question, okay, I am giving the answer of this question, and the answer of this question is yes, vitamin D. Vitamin D is also known as sunshine, which is also known as a hormone also, okay. And vitamin D disease name is rickets, and rickets, the meaning rickets is losses in the bones, and bones can be reformed with the help of calcium mineral. Yes, calcium mineral की हेल्प से बोन्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, ठीक है। एंड ड्यू टू द लैक अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन द बॉडी, and a treatment is applied to the patient. The name is calcitriol, okay. Calcitriol is a treatment which mainly applied to the patient, which mainly given to the patient and who has a less amount of calcium in the body, okay. So now the next question is, this is the quiz, okay, and then give answer of this question: which vitamin is responsible for increased visibility of eye? So again we have some options: vitamin C, A, B, and D. Then give me the right answer of this question, and the right answer will be vitamin A, okay. So दो क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, और इन क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से जल्दी आप अपने कमेंट बॉक्स में दें, अपना नाम लिखें। आप जब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो सबसे पहले अपना नाम जरूर लिखें, फिर उसके नीचे अपनी क्लास लिखें, ओके, फादर नेम लिखें, और फिर उसके बाद 1, 2, 3 का आंसर ये है, 5th का आंसर ये है। इस तरीके से आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी अपने आंसर दें, और देखते हैं आज का विनर कौन है, सबसे पहले आंसर कौन देता है, कितनों के सही आंसर आते हैं, राइट आंसर
अचीव करते हैं। और अब ये क्वेश्चन हैं आपके, तो देखते हैं। Due to the lack of which vitamin scurvy disease will appear? So these are the options. तो इन ऑप्शंस के थ्रू आप अपना आंसर दें जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है विटामिन सी। ओके, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू द लैक ऑफ विच विटामिन निक्टेलोपिया डिजीज विल अपीयर? निक्टेलोपिया विल डिजीज अपीयर। तो ये आपका ऑप्शन है, इनके आंसर बताएं। और इसका आंसर भी आपको मैं बता देता हूँ, विटामिन ए इसका आंसर होगा। और इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपको, ये अभी जैसे मैं जनरली कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जिससे आपको पैटर्न पता लग जाए किस तरीके से आपको आंसर देना है। ओके, और इसके बाद में कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ओके, सो उन पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। So I think all the students have understood the basic concept of the vitamins, and now we are discussing about some questions, and I am giving some questions to all of you, and then give the right answer in the comment box. Okay, and who will win in the quiz? Okay, let's see. So these are the questions. Due to the lack of which vitamin rickets disease will appear? So these are the options, and then give the answer in the comment box. The first question, तो रिकेट्स के बारे में पता ही है आपको, विटामिन डी। हाँ, एक और बात ध्यान सुने, विटामिन डी जो है, विटामिन डी कमी से होने वाला जो रोग है वो रिकेट्स है, जो कि मेनली प्रेजेंट इन चाइल्ड, बट इन द एडल्ट्स इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टियोमलेशिया। ध्यान सुनना, ऑस्टियोमलेशिया। ओके, सो इन द एडल्ट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग इन एडल्ट्स इज नोन एज ऑस्टियोमलेशिया। ओके, so this is the quiz, so give the right answer of this question. The second question is, which vitamin known as beauty vitamin? Yes, a different type of question then. Okay, let's check how many students will give the answer of this question. Okay, then these are the options. एक और बात यहाँ बताया था, बस देखो सारी चीज़ आज जा रही हैं। विटामिन B12 इसका मैं बताया था, इसका नाम था अपन बताओ क्या, कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, which is mainly responsible to form RBC। और आपको पता है RBC की कमी से होने वाले, due to the less amount of RBC which disease occur in the body, the name is anemia। एनीमिया जिसका नाम था एनीमिया, a disease which is mainly occurred due to the less amount of RBC। ओके, सो RBC कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया के लिए मिनरल कौन सा होता है, आयरन। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, द लैक ऑफ विच विटामिन वेरी डिजीज विल अपीयर? और फिर से आपके पास ऑप्शन है, पॉज करके आप देखते जाएं, इनका आंसर देते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन मेक्स रेड ब्लड सेल्स? ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस एंड देन गिव द आंसर। गिव द आंसर। यस। हाँ, कुछ बच्चों को अगर पता लग गया हो तो हिंट दिया था अभी कुछ। देखते देखो कितने बच्चे इस चीज़ को समझ रहे थे और किन्होंने अभी सुना जो बोला मैंने, शायद वहीं से कुछ मिल जाए। मुझसे मत पूछना क्या है इसका आंसर, ठीक है। हाँ, इसका हाउ मेनी टोटल विटामिन आर देयर एंड दीज आर द ऑप्शन, देन गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द विच विटामिन कैल्शियम लेवल विल इंक्रीज इन द बॉडी? सो दीज आर द ऑप्शंस एंड गिव आंसर। विच विटामिन ऑल्सो नोन एज हार्मोन? इसके बारे में भी शायद बताया हो, क्या पता, शायद अगर देखी हो वीडियो अच्छे ढंग से तो शायद आ जाए आंसर। देखते हैं कितने अच्छे देते हैं आंसर इसका, देखते हैं ऑप्शन में से, देखती है कितने अच्छे देते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटिंग नेम ऑफ विटामिन B3, और ये आपके ऑप्शंस हैं, देखते हैं कितने अच्छे आंसर देते हैं। विद शॉर्ट ट्रिक, याद करो शॉर्ट ट्रिक को, ताई मैंने बोल ली, यस या। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, B9 का नाम बताइए, ये भी आपके ऑप्शन है। फिर इसके बाद विच विटामिन इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन? ठीक है, देन दीज आर द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में। फिर से, विच विटामिन इज नॉट ए वाटर सोल्यूबल विटामिन? ओके, अगेन द क्वेश्चंस एंड देन ऑप्शंस in front of you, then give the answer. Due to the lack of this vitamin, infertility will appear in body. So again options are, and the give answer in the comment box. Bleeding from gums disease
इज appeared in a body due to the lack of which vitamin? ओके, किसकी कमी के कारण ब्लीडिंग, गम से ब्लीडिंग का निकलना है, कौन सी विटामिन कमी से है? देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे देते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट को एनीमिया डिजीज appear in the body due to the lack of which vitamin? फिर से ऑप्शन है आपके पास सामने, फिर से। तो ये आपके सामने सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कमेंट बॉक्स में आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से जल्दी दें। और आज मैं देखता हूँ कितने बच्चे एक्टिव हैं और कितने बच्चों ने सबसे पहले इसको एक्टिव होके 9 o'clock पे आप क्लास स्टार्ट हो जाती हैं और आपके इतने ही जोश के साथ में आपके लिए हम लगे हुए हैं। इसलिए मेरी फिर से आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरीके से लेक्चर्स को अटेंड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भैया हमको पढ़ाएं, हमारे लिए बार बार सारी फैसिलिटीज़, हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था जो की है उसको और भी इम्प्रूव करें, इतनी मेहनत के साथ, इतने जोश के साथ में लगे हुए हैं भैया, उसी जोश के, उसी और भी ज़्यादा जोश से आपके लिए लगे रहें। ये कितने बच्चे चाहते हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में आज अपने दिल की बात अपने कमेंट बॉक्स में कह ही दें कि कितने बच्चे लेक्चर्स को कंटिन्यू देखना चाहते हैं और इसी जोश के साथ में नए नए टॉपिक्स, नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में और मुझको सामने देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप जब कमेंट नहीं करोगे या कुछ भी आप रिस्पॉन्स या नहीं देखोगे तो वो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करता है और इस वजह से फिर मैं वीडियो वगैरह ये सब चीज़ें नहीं बनाऊँगा, फिर क्या मतलब उस चीज़ का। तो आज देखते हैं कितने बच्चे, मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, शायद सभी बच्चे मुझसे बहुत अच्छे प्यार करते हैं और गिले शिकवे सब बुला देना, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो हमारी ड्यूटी होती है। ओके, सो आज देखते हैं कितने बच्चे आज पढ़ाई के लिए कितने बच्चे एक्टिव हैं और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कितने बच्चे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में देते हैं और कितने बच्चे मुझे फिर से देखना चाहते हैं एक नए टॉपिक का नई एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के साथ और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दें। एंड बेस्ट ऑफ लक टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नमस्कार एंड धन्यवाद, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। ओके।